أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مجید بھائی، میں خصوصاً آپ کے لیے ہی یہ ویڈیو بنایا ہوں، تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس فون پہ تو وقت نہیں ہے بات کرنے کے لیے، اور دین کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے بھی آپ نہیں چاہ رہے ہیں، تو کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا تھا، اس کے لیے میں آپ کو یہ بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تو تھوڑا برداشت کر کے سن لیجئے، انشاءاللہ اگر اس کے بعد بھی جو ہے اگر آپ کو دل نہیں بول رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ آپ کو جو الفاظ سنانا تھا، جو بات سنانا تھا، اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، اب اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سیرت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ سیرت میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اٹھائے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا اقرا کہ جو ہے لوگوں کو جمع کرو۔ جمع کے معنی ہے، لوگ تو پڑھنے کے معنی بھی لیتے ہیں اقرا کے معنی، مگر جو ہے جو روحانی وجود ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو ہے الگ ہی کلام ہوتا ہے، صوفی لوگ جو ہوتے ہیں، تو جو ہے وہاں پر میں اقرا کے معنی جو ہے جمع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہ جو ہے سو آپ لوگوں کو جمع کریے، کیونکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بے چینی میں رہتے تھے کہ جو عرب کی جو عیاشی تھی، عرب کا جو ماحول تھا وہ ایک دم خراب تھا، تو اس کو کس طریقے سے ختم کرنا، کیسا لوگوں میں ایکتا ہونا، کیسا لوگ سیدھے راستے پہ آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فکر تھی۔ آپ اسی فکر کو جو ہے سونا فکر میں جو ہے آپ غار حرا میں جا کر جو ہے سونا اکثر آپ جو ہے سونا بیٹھا کرتے تھے وہاں پر میں، اور وہاں کرتے تھے کیا، آپ وہاں پر میں جا کے آپ مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے، مراقبے میں بیٹھ کر آپ دعا کرتے تھے کہ جو ہے یہ ماحول جو ہے جو اتنا بگڑا ہوا ہے، اس کو جو اس میں کیسا سدھار آئے گی، اس میں کیا کر سکتا ہوں، یہ آپ مراقبے میں بیٹھ کر جو ہے سونا آپ توجہ جو ہے اللہ سے جو ہے سونا اپنی توجہ رکھتے تھے۔ بہرحال اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر میں جو ہے سنا فرشتوں کو بھیجا اور آپ کو نبوت سے نوازا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے سنت پہ چلنے والے ہیں، آپ بھی سنت پہ چلنے والے ہیں، الحمدللہ ہم بھی سنت میں چلنے والے ہیں۔ تو حقیقی جو سنت ہے آج کیا ہے بولے تو ماحول جو جتنے بھی لوگ ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سنت بولے تو کیا ہے، بولے تو کھانا پینا، ایسا بیٹھنا، ویسا کرنا، یہ کپڑے پہننا، وہ پہننا، میٹھا کھانا، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا، یہ سب سنتیں جو ہے سنا اکثر بیان ہوتی ہیں، اور جو ہے سنا جیسا اصلاح کا کام ہے، آپ کا کام ہے جو اصلاح جو آپ کر رہے ہیں، گاؤں جا کے جو ہے سنا مسجدوں میں پھر رہے ہیں، جو نماز کو نہیں آ رہے ہیں نماز کو بلا رہے ہیں آپ، تو جو ہے سنا یہ بات بھی ہے، یہ بھی نیکیش ہے، مگر جو ہے سنا اصل نیکی اگر آپ دیکھیں گے تو جب اسلام آیا، جب قرآن آیا، جب قرآن نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نماز جو فرض ہوئی ہے وہ کب فرض ہوئی ہے، جب آپ کو معراج ہوئی، اور معراج کب ہوئی آپ کو بہت تو معلوم ہے، 8 یا 9 سال کے بعد میں آپ کو معراج ہوئی، تو 8-9 سال تک جو ہے سنا کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ 9 سال کے بعد میں معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا جو امت کے اوپر میں فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تنہا کھڑے ہو گئے تھے، جب کچھ نہیں تھا، جب قرآن پہلی آیت نازل ہوئی تھی اور جب نبوت کا آپ کو اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احبابوں میں جو ہے سنا اسلام کو پیش کیا اور اپنے نبوت ہونے کا آپ نے اعلان کیا، تو سب نے مان کر کے الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے اہلیہ ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور زید بن حارثہ ہے، تو یہ سب لوگ جو ہے سو جب آپ کے ساتھ میں تھے تو فوراً جو ہے سنا ایمان لائے، آپ کے اوپر میں لبیک کرے۔ اور بات کیا ہے بولنے کی، یہاں پر اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے تھے، اکیلے تھے، آپ کے مد مقابل میں اور کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے آپ کے،
ये चीज़ हमको बहुत बड़ी गौर व फिक्र करने की बात है, क्योंकि जो है लोग तबलीग करते नहीं। तबलीग करना बोले तो इस्लाह का काम मुसलमानों में जाके कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम वो जो है बहुत ये काम कर रहे हैं। हालांकि इस्लाह का जिक्र ना तो कहीं भी ये जो है ना कुरान के अंदर में जो है ना तुम ये कर लेते फिरो या इसी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करो बोल के कहीं भी अल्लाह ताला नहीं फरमाया है। बहरहाल मैं आपको ये सिचुएशन में ये बता रहा हूँ कि जो है ना वहाँ पर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तन्हा होकर के खड़े रह गए, जब उनके मुकाबिल में कौन था? सिवाय काफिरों के कोई नहीं था। सिवाय काफिर में कोई नहीं थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ले लो, या जो है हज़रत बिन हारिसा ले लो, और दूसरे भी कितने भी सहाबा थे, या फिर आप जो है ना मक्का के पास जाके जब ऐलान भी करे तो वहाँ पर पूरे काफिरों के सामने जो है ना आप जाके मैं नबी हूँ, मेरे को अल्लाह ताला ने जो है ना खातमुन नबीन बना करके खड़ा किया है, लिहाजा आज के बाद जब तक कोई इंसान मेरे पर ईमान नहीं लाता उन्हें नजात नहीं पा सकता। ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया वहाँ पर में। अब ऐलान करने के बाद में वही मक्का के लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन सादिक जानते थे, आपके ऊपर में जो है सनद अपने माँ बाप पे उतना भरोसा नहीं था, अपने बेटे पे उतना भरोसा नहीं था, अपने अहले आल पे उतना भरोसा नहीं था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना भरोसा था कि लोग जो है उनका जो माल रहता था वो अमानत के तौर पर आपके पास लेके आके रख देते थे। तो ऐसे वक्त में जब आपने ऐलान किया कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस पहाड़ के पीछे से अगर मैं कहूं कि एक लश्कर आ रहा है तुम्हारे को हमला करने के लिए, तो तुम क्या मेरे ऊपर में ईमान लाते हो? तो सब ने कहा लब्बैक, हम बराबर तुम्हारे ऊपर ईमान लाते हैं और हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि इसके पीछे से काफिला जो है आ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर फरमाते हैं, तो मैं ये बात तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, मगर असल बात यह है कि यहाँ से कोई काफिला नहीं आ रहा है, मगर कि अल्लाह ताला ने मुझे आखिरी नबी बना करके खड़ा किया, तुम सब की रहबरी के लिए मेरे को अल्लाह ताला ने नबी चुन लिया है करके आपने ऐलान किया। ऐलान करने के बाद में सारे के सारे लोग जो है सना मुँह करके चले गए। तो कौन थे वहाँ पर में सामने? सारे के सारे काफिर थे, कोई मुसलमान नहीं था। चलिए ठीक है, ये भी अगर थोड़ी देर में बात अगर समझ में नहीं है आपको, तो जैसा जैसा वक्फा बीतता गया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 साल मुखालिफत करके जो है सुना इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी थे, उन्होंने भी जो है फ़ौरन आ गए। मगर यहाँ पर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आने के बाद में कभी भी वहाँ पर में ना तो नमाज़ फ़र्ज़ हुई सबसे पहले, ना ही इस्लाह का काम आपस में जो है सुना ये हुआ क्या वहाँ पर में नमाज़ हुई 9 साल के बाद में फ़र्ज़ हुई आपके ऊपर में। तो हमारे ऊपर में 9 साल का जो वक्फ़ा है, ये वक्फ़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या काम किए? वो तो तबलीग का काम करे, गैरों में तबलीग फैलाए। उन्होंने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाओ तुम्हारी तौरात, लाओ तुम्हारी इंजील, लाओ अहले किताब, जितने भी किताबें हैं तुम सब लेके आओ और देखो उसके अंदर में मेरा जिक्र है कि नहीं है। जब लोगों ने लाए, देखने के बाद में कोई लोग इनकार भी करे, कई लोग मान भी लिए। तो बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तबलीग का काम किया, और ये तबलीग के काम में ही आपने जो मुसीबतें उठाई हैं, ताइफ के मैदान में आपको पत्थरे मारे, यहाँ पर मैं आपकी जो है सना दंदान मुबारक जो है सना शहीद कर दिया वक्त के इसमें, और जो है सना जहाँ पर मैं पिशानी पे मार लगा था आपकी जो है सना खून इतना बह रहा था कि आपके जूते मुबारक तक जो है सना उसे भीग गए थे, जबकि आपके साथ में जो है ज़ैद बिन हारिसा भी साथ में थे और एक सहाबी भी साथ में थे। तो वहाँ पर लोगों ने इनकार किया, आपको फतरे मारे। तो क्या पेश करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके वहाँ पर इस्लाम पेश करें। किसके सामने पेश करें? गैरों के सामने पेश करें, गैरों के सामने पेश करें। ये नहीं करें कि जब इस्लाम आया तो अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, या फिर ज़ैद बिन हारिसा, या हज़रत अली, या फिर अम्मा जान सैयदना हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सबको ये नहीं बोले कि चलो अब मैं तुमको इस्लाम जो है ना तुम इस्लाम में आ गए, अब तुम खाली नमाज़ पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, खाली यही कर लेते बैठ जाना था। मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? इससे भी बड़ा काम, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। नमाज, रोज़ा, हज से भी बढ़कर जो इबादत है अल्लाह की, वो अल्लाह की रज़ा में है। और अल्लाह की रज़ा में क्या है, अल्लाह की रज़ा में किस तरह है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल मेहनत करके जो है सना आपने बता दिया कि काफिर को इसके साथ में जो है सना किस तरह जो है सो तुम तबलीग कर सकते। तो तबलीग हमारे ऊपर में जो है महज जो है सना फ़र्ज़ है। इस्लाह का काम तो जो है सना वो अपने आप होते रहेगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, तो जो हिंदुस्तान जब जन्नत निशान बन जाएगा, वो सब हो जाएगा। और ये जो है ना रिवायत भी है, एक बार जो है ना एक बार जंग में जाने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है सहाबा कराम को जो है ना आवाज़ दिए। तो कुछ सहाबा क्या करे, बोले तो नहीं नबी करीम जमात जो है ना नमाज़ें जो है लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ने लगे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़े, ताकि उनको जो है जंग में ना जाना पड़े, ये काफिला चले जाए और हम जो है जंग में जाने से बच जाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को जब ये बात मालूम हुई, तो आपने क्या करे, भेजे कि उनकी जो लोग नमाज़ पढ़ की गर्दनों में हाथ डाल के बाहर निकालो, बोले आप, तारीख मौजूद है। तो
तारीख हमें ये बता रही है कि उनके गर्दनों में हाथ डाल के बाहर निकालो आप। तो वो जो है सो ना जब गर्दन में हाथ डाल के नमाज से बाहर निकाले कि जहाद में लेके गए लोगों को, तो हमको पता क्या चलता है, क्या नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं था? जब फ़र्ज़ था फिर भी उनको बोले कि गर्दनों में हाथ निकाल के जो है ना बाहर निकालो। कि एक बार जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म दिया है कि फ़लानी फ़लानी बस्ती को जो है ना उलट के पलटा के रख दो, ख़त्म कर दूँगा के लोगों में जो है रहने वालों में कि जो भी लोग हैं वो लोगों के समय से है वो बस्ती को जो है ना पलटा दो। ये हदीस है और ये आखिरी हदीस है समझने के लिए इंसान के लिए। तो वहाँ पर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के पास में रुजू होकर, ये आप सुना रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वहाँ पर में या अल्लाह उस बस्ती में ऐसे ऐसे लोग हैं जो है पलक झपकने तक भी जो है तेरी इबादत से गाफिल नहीं हुए, यानी कि उनके हाथों में हमेशा तस्बीह अल्लाहु अल्लाहु और जो है सुना कुरान पढ़ते रहना, तिलावत करते रहना, अल्लाह की जो है सुना जो भी तरीक़ा था इबादतगार का वो इबादतगार का तरीक़ा करते रहना। ये बात जो है सुना एक आखिरी हदीस है ये समझाने के लिए। तो ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो है ना जिनका घोड़ा तक जो है ना हराम ग़िज़ा नहीं खाता, वो भी हलाल खाता है। तो ऐसा वजूद तक जो है ना उसके अंदर में मौजूद है। तो मैं कैसा इस जो है ना लोगों के समझिए बस्ती को मैं ख़त्म कर दूँ, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नज़दीक में सवाल रखते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि या जिब्राइल ऐसे लोगों को पहले पलटाओ, ऐसे लोगों को पहले जो है ना गड़ा खोद के जो है ना ज़मीन में डाल दो, जो ये कहते हैं कि जो है ना मैं जो है ना अल्लाह का जो है ना मुखरिब बंदा हूँ और कर क्या रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना अपनी इबादत में लगा हुआ हूँ। रात दिन नमाज़ें पढ़ रहे, रात दिन कुरान पढ़ रहे, रात दिन ये पढ़ रहे, मगर जो माहौल ख़राब हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। माहौल क्या ख़राब हो रहा है, बाहर का जो माहौल ख़राब हो रहा है कि जो है ना कि लोगों का घर लूटा जा रहा है, लोगों की जो है ना कारोबार में धोखापना चल रहा है, माहौल जो है ना गंदा माहौल हो रहा है और जो है ना ऐसे ऐसे माहौल बिगड़ रहे हैं। तो इसकी फ़िक्र नहीं है, तो इसको सुलह करने वाला कौन है, इसको सीधा करने वाला कौन है? अब अल्लाह तो जो है ज़मीन पर आने वाला नहीं है फरिश्ता आसमान से उतर के। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ऐसे लोगों को पहले पलटाओ जिसको जो है ना दीन मालूम है, कुरान मालूम है, अमल मालूम है, सब मालूम रखते हुए भी तुम जो है ये काम कर रहे हैं, अपनी जो है ना इस्लाह करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पहले डुबाया बोलता अल्लाह ताला। क्योंकि हम देखते हैं कि सहाबा इकराम की जो ज़िंदगी थी वो किस तरीके से मुश्किलात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरीके से मुश्किलात थी। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है क्या हम उनसे बेहतर है? क्या अल्लाह ताला हमसे उनको बेहतर मुकाम हम नौज़ बिल्लाह हमको दिया है कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किल है, सहाबा इकराम को इतनी मुश्किल है कि जो है अपना जान गंवा दी, अपनी माल गंवा दी, अपने बीवी बच्चे सब कुछ जो है सना लुटा दिए, लुटा के रोड पे आ गए। जिधर बोले उधर जो है जंगों पर जंगे कर रहे हैं, भूख से प्यास से तिल मिला रहे हैं, सब कुछ रखते हुए बर्बाद जो है सना बर्बादी है हुए जैसा आलम हो गया, मातम हो गया। तो ये चीज़ जो है सना क्या हम उनसे बेहतर हो सकते हैं? नहीं, हम उनसे बेहतर नहीं हो सकते, बल्कि वो एक हमारे लिए नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अगर कोई है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए जिससे अल्लाह राज़ी हो, वो क्या है? अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक देखते हैं तो हमको सिवाय मुश्किलों के, सिवाय मुसीबतों के, सिवाय जो है सना पहाड़ जैसे मुसीबतें जो है सना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए, तो वही मुसीबत की ज़िंदगी हमारे ऊपर में भी आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम भी जो है सो ना हम उसी के ऊपर में हमको अमल करना है और जब तक हम उन पे अमल नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। तो जो है सो ना आज आप जो काम आज जो लोग काम कर रहे हैं, इस्लाह का जो काम कर रहे हैं, वो काम क्या है? वो काम सिर्फ जो है आपको आपस में जो बेनमाजी है तुम उसको नमाजी तो बना सकते हैं, मगर ये काफिर का जिम्मेदार कौन होगा? ये सारे के सारे सहाबा इकराम जो है 10 साल के अंदर, महज 10 साल, जब आप यहाँ पर में 13 साल थे, बाद में जब आप मदीने में आए थे 10 साल के बाद में, वहाँ पर में मदीना हिजरत करके उसके बाद में कितने साल के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सना फतेह मक्का किया है कि चंद सालों के अंदर में अल्लाह ताला जो है सना फतेह करके बता दिया। क्यों? क्योंकि जो है उनके पास में अल्लाह की मदद थी। तो जब कभी कोई जो सना दीन का काम करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला दीन का काम लिया और दीन का काम लेके मदद दिया है, फरिश्तों से मदद दिया है, सहाबा से मदद दिया है। हथियार नहीं थे जंग बदर में, फिर भी अल्लाह ताला ने मदद करके जो है सना जीता है। और फरमाया अल्लाह ताला से जो है सना
बल्लिग क्या फरमाता है अल्लाह ताला कुरान में, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह जो है सो आपका निगहबान है और आप जो है सो ना तबलीग कीजिए। तो जो कोई इंसान तबलीग में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है वो कामयाब हो जाता है, और उसके साथ में मलाइका तक होते हैं। उसके साथ में कौन होते हैं? उसके साथ में मलाइका तक जो है सो ना उसके साथ में जो है सो ना मदद के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह और रसूल की इताअत और इत्तिबा कर रहे हैं। आती अल्लाह व आती रसूल का मतलब क्या है? हम उन्हीं के जो है नक्शे क़दम पर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ये चीज़ है। और भी अगर हम देखेंगे, जितने भी औलिया अल्लाह हैं उन सब के सब क्या करें? तबलीग इस्लाम करें। जो है सो ना गौसे पाक आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो है सो ना ईरान से, इराक़ से जो है सो ना आके जो है सो ना आप इधर में तबलीग करें, है ना। और 2.5 लाख औलिया अल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान में आए। क्यों आए? क्योंकि हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाना है। वहाँ पर में हज़रत हुसैन अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई थी, आप 3 शर्तें रखे थे यजीद की फ़ौज के सामने, जो उसका सिपह सालार था। क्या बोले? या तो मेरे को यजीद से डायरेक्ट बात कर लेने दो, या तो मेरे को जो है सो ना वापस मक्के को जाने दो, या तो फिर मेरे को हिंदुस्तान जाने दो। क्योंकि हिंदुस्तान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा आई है। वो ठंडी हवा क्या थी? वो इस्लाम की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अरब में हूँ मगर अरब मुझ में नहीं है, मैं हिंद में नहीं हूँ मगर हिंद मुझ में है, और मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस्लाम इस यहाँ पर में गालिब होने वाला है, वो जो है सो ना आप देख लिए थे। वो देख लेने के बाद में ही जो है सो ना हज़रत हुसैन अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है सो ना तमन्ना किए थे इधर आने की, मगर जो है सो ना यजीद ने जो है सो उनको जो है सो ना शहीद कर देता है। तो आप ही की रूह, आप ही की तड़प जो है सो ना यहाँ पर में 2.5 लाख औलिया अल्लाह को जो है सो ना खींच के लाई हिंदुस्तान के अंदर में, कि हिंदुस्तान में तबलीग करना है। तो वहाँ पर में तारीख भी गवाह है कि जो है सो ना हिंदुस्तान के अंदर में 2.5 लाख औलिया अल्लाह आए और यहाँ पर में तबलीग का काम करें और दीन फैला। और हर हमेशा दीन को फैलाने के लिए औलिया अल्लाह आते रहे हैं, एक अल्लाह ताला की तरफ से आते रहे हैं, हर हमेशा आते रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी आज के दौर में ये जो वक्त है, ये जो दौर है, ये जो 1924 से हम जिसके बानी हैं मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन दीनदार सैयद सादात अल हसनी वल हुसैनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन दीनदार चंद बसवेश्वर क़िबला खुदूस अज़ीज़, आप जो है सना कोई जो है सना अपनी तरफ से खड़े तो नहीं हैं। आप जो है सना सारे मज़हब के जितने भी मज़हब है हिंदुस्तान के अंदर, एक सौ ज़ात का आपने जो है ना किताबों का मुताला किया, मुताला करके देखा कि हिंदुस्तान की कौम किस तरफ में जा रही है। जब देखा कि हर कोई जो है हर एक किताब में है, धर्म, वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल में हर एक में यही जो है सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में भी जो है सो नबियाँ आए हैं, एक नहीं है बल्कि बहुत सारे नबियाँ आए हैं हिंदुस्तान के अंदर में भी। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम 4 आयत में फरमा दिया गया, हमने हर कौम के लिए हादी भेज दिया है उनकी अपनी ज़बान में, उनकी अपनी ज़बान। तो हिंदुस्तान में भी आए, तो हिंदुस्तान में भी आए का मतलब यहाँ के भी वे शास्त्र के जो है पुकार के कह रहे हैं कि जो है वो कल की अवतार, सिर्फ भाषा का भेद है। भाषा का भेद अगर हटा देंगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जिसको बोल रहे हैं वो अल्लाह है, ज़बान का भाषा का भेद है। और जो है इंग्लिश में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु बोलते हैं, और संस्कृत में जो है जगत गुरु बोलते हैं, जगतपति बोलते हैं, नराशंस बोलते हैं, कल की अवतार बोलते हैं, जगतपति। और जो है कई ऐसे बहुत से ना शिव सहस्त्र नामावली, विष्णु सहस्त्र नामावली के जो है हज़ार नाम बताए गए हैं वहाँ पर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ऐसे कई नामों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी किताबों में याद किया गया है। आपकी पैदाइश की तारीख जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके पास में मौजूद है, हिंदू शास्त्रों में मौजूद है। आप मक्का किस तरीके से फ़तह करेंगे ये भी मौजूद है, लिखा हुआ है। और जो है आप किस तारीख को पैदा होंगे वो भी लिखा हुआ है। और ऐसे कई वाक़यात हैं, आप शंबल ग्राम में जो है मक्का मदीना में पैदा होंगे, आमिना के घर में पैदा होंगे। ये सब तारीख़ जो है हिंदू शास्त्रों में जो है लिखे भी है। और ये लोग भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कल की अवतार आने वाले हैं, जगत गुरु आने वाले हैं। तो वो जगत गुरु कहाँ आएंगे? वो मक्का में आएंगे बोल के लिखा हुआ है। भी भाषा का भेद रहने की वजह से ये कौम जो है एतराज़ कर रही है। मगर अगर इनको हम घर घर जाके समझाएंगे कि जो है इस्लाम जो है कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि वही धर्म है जिसका इंतज़ार तुम लोग कर रहे हैं। जो जगत गुरु है, जो कल की अवतार है, जिसका तुम आने का जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम वही धर्म है, सिर्फ भाषा का भेद है। हम वो लोग जो है जगत गुरु बोल के बोल रहे हैं, हम सरवर आलम बता रहे हैं। सरवर आलम ये बात एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और ऐसे जो है हम नबियाँ बोल रहे हैं, ये लोग अवतार बोल रहे हैं, एक ही बात है।
सिर्फ भाषा का भेद रहने की वजह से हमारे से ये जो हिंदू कौम जो है वो हमसे दूर होते जा रही है। तो इसको एक करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने जो है हम मुसलमानों पर जो है ना रखा है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुन व शुहदा इलन्नास व यकुन रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत जो है सना बनाकर जो है सना भेजी गई हो। तो ये ज़िम्मेदारी एक मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि तमाम अध्ययन में जहाँ जहाँ भी गैर मुस्लिम रहते हैं उन तक जो है दीन को पहुँचाए। तो यही काम को लेकर हमारे बानी जो है सना यहाँ पर हैदराबाद से उठे हैं, और इन ऐसा उठे हैं कि जो है सना आपका ज़िक्र, क्योंकि ये जो है सना जो आप जो ठहरे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खड़े हैं, बल्कि अल्लाह खुद आपको जो है सना खड़ाया है। आपके तमाम निशानात, कोई वजूद जब आता है अल्लाह की तरफ से तो उसके निशानात होते हैं, या आसमानी हो या जिस्मानी हो या फिर जो है सना बशारतें हो, ये सब चीज़ मौजूद रहती है। कहाँ पर? वेद शास्त्रों में, या फिर जो है वेद शास्त्रों में भी है, या गीता में भी है, कुरान में भी है, हर जगह में है, हदीसों में भी है। हदीस में भी लिखा है मेरी आज से एक शख्स खड़ा होगा जो मेरे एहसानात को जो है सुना बयान करेगा, और जिसके आने से जो है सुना हर 24 घंटे में जिधर किधर भी जाएगा तो पानी बरसेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे निशाना जो है हमारे मौला के है। तो ये तमाम निशानों के साथ जो है सुना आप आए हुए हैं। सारे हदीसें मौजूद है, कुरान मौजूद है, वेद शास्त्र गवाह है, सब चीज़ गवाह है, जिस्मानी निशान गवाह है। आप एक को भी जो है सना ये ठुकरा नहीं सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पर मैं जो ज़माने के इमाम बना के जो है अल्लाह ताला ने आपको खड़ा करा, तो आपने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फिर के आपने कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, कोई मठ नहीं छोड़ा है, किसी के भरोसे पे नहीं, तन्हा अकेले आप जाके जो है सना कर्नाटक के अंदर में बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े गिरजाघरों में जो है सना आप अकेले जाके जो है सना ऐलान किया कि ऐ लोगों, तुम जिस जगत गुरु का इंतज़ार कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। अगर तुम देखना है तो अपनी किताबें निकालो और अपनी निशानात जो है सना चेक करो, वो मेरे पास में है या नहीं है। वो सारे के सारे निशानात मेरे पास में हैं। तो आप हमारे हज़रत ख़ुल आलम जो है सना दावा करे इस बात का, 1924 में दावा करे, और लोग इंतज़ार कर रहे थे। और किस वक्त में जो है सना मठों में मंदिर में दाखिल होगा, वो जहाँ जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ पर तक का टाइम तक उनके पास में मौजूद था कि इस टाइम में 12 बजे वो दाखिल होगा तो होगा, बोले तो वहाँ तक भी जो है सना वो कदम डाले तो लोग जो है धड़ाधड़ जो है सना कदमों में गिर के इस्लाम कबूल कर लिए कई लोग। और यहाँ पर हिंदुस्तान के 600 रजवाड़ों को जो है सना आपने इस्लाम में दाखिल किया, इस्लाम का जो है सना पैगाम पहुँचाया 600 रजवाड़ों को। और कई लोगों को जो है सना पंडितों को, बड़े बड़े मैं बोलने वाले जो है सना लोगों को भी जो है सना आपने जो है सना दावत दिए, इस्लाम की दावत दी है, और बताया कि मैं जो है तमाम लोगों के लिए जो है सना हिंदुस्तान में तमाम लोगों को रहने वालों के लिए मैं जो है ना रहबर बन के आया हूँ। जब तक कोई मेरे में फना नहीं होगा, यानी कि मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, वो जो है सीधा रास्ता नहीं पा सकता। और सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता वही रास्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही सीधा रास्ता है। तो उसको किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में आज से 1400 साल पहले किस तरीके से अमल करके बताया, आपने अमल करके बताया। यहाँ पर में भी आपने अमली नमूना जो है सना ये किया, और अपने साथियों को भी जो है सना अमली जो है सना ये करा। आप भी फ़कीर बने, हमको भी फ़कीर बनाया, बोला कि और जो और आप फरमाते हैं कि जो है कि हमेशा फ़कीरी इख्तियार करना, फ़कीरी से ही जो है ना अल्लाह ताला राज़ी होता है। अल-फ़ख्रु फ़ख्री वल फ़ख्रु मिन्नी, क्योंकि फ़कीरी से ही जो है ना इस्लाम का गलबा, जिधर बोले उधर में जो है ना गलबा होता है। तो ये जो है ना एक बहुत बड़े निशानों के साथ में जो है ना हज़रत ख़ुल आलम जो है ना यहाँ पर में आज हिंदुस्तान में काम करें, और यहाँ तक कि जो है ना रूहानी ताकत से आपने हिंदुस्तान को भी आज़ाद किया 1947 में। आप ही के जो है ना अमल से जो है ना ये रूहानी वजूद जो है ना अपनी जो है ना तपस्या में रख के अपने दीन को जो है ना अल्लाह के दीन को जो है आगे बढ़ा रहा था। तो अंग्रेज़ कौम ने जो है आपको जो है एक ठगी जेल में ले जाके जो है ना डाल दिया था। तो जो है तो उस मुसीबत को देख के अल्लाह ताला ने जो है ना हज़रत ख़ुल आलम की गीरत में जो है हिंदुस्तान को जो है यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा कर छोड़ा। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जब कभी औलिया अल्लाह को तकलीफ़ दिए, वो हुकूमतें सारी ख़त्म हो गई, शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आप तारीख़ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो जब हुकूमतें बदली तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अल्लाह वालों को सताने की वजह से ही हुकूमतें बदली हैं। तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी 1947 में हुआ ये, और ये होने का था, ये भी तारीख़ में मौजूद है। तो हमारा क्या काम है बोले तो हमको दीन फैलाना है। हमको दीन किस तरीके से फैलाना है? जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, जिस तरीके से सहाबा इकराम ने दीन को फैलाया है, ऐसा ही वही काम जो है ना हमारा है। तो हमारे को जो है चाहिए कि हम जो है गैर कौम की जो है ना किताबों का स्टडी करें, उसकी मालूमात करें, फिर हम उसके दीन को जो है ना फैलाएँ। गौसे पाक आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं
कि तुम जो है मत मरो, कम से कम 2 लोगों को तो भी मुसलमान करके मरो, 2 लोगों को भी। और बग़ैर वली बने के मत मरो, फरमाते हैं आपको गौसे पाक आज़म दस्तगीर कहते हैं, बग़ैर वली बने के इंसान मरना ही नहीं है बोले। तो वली बनना कैसा, तो जब तक आप गैर कौम में काम नहीं करते, जब तक आप वली नहीं बनते। ये तो काम जो है सना आज जो है सना बहुत सारे मस्जिदें हैं, आज बहुत सारे हाफिज़ बने हुए हैं, मगर मकसद को भूल गए कि हम जो है सना कुरान जब आया था तो जो है जलजले डाल दिया था हुकूमत दुनिया के अंदर में, अरबस्तान में जलजले आ गए थे। एक जो है सना बिलाल हबशी, एक गुलाम, एक काले कैसे थे आप, मगर आपको देख के अच्छे बड़े बड़े ताकतवर भी जो है सना बादशाह भी रहता तो उनको उनसे जो है सना कांपता था। क्यों? क्योंकि उनके पास में इस्लाम था, उनके पास कुरान थी, उसके उनके पास में आपके पास में अमल था। जब तक आप अमल नहीं करेंगे आप अपनी ज़िंदगी को जो है राज़ी नहीं कर सकते आप अल्लाह ताला को। अमल से ही बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल बहुत ज़रूरी है। अमल ये नहीं है कि आप मस्जिद में किसी भी जाके जो है सना मस्जिद में लोगों को जो है सना दावत दे रहे कि भाई नमाज़ को आओ, नमाज़ को आओ। भाई अज़ां होती, अज़ां किस लिए होती है मालूम है? अज़ां जो है नमाजियों को न बुलाने के लिए ही अज़ां होती है। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए जो है सना अज़ां है। आप अलग से जाके उसको अज़ां दो वो तो गुनहगार है। वो तो उसके लिए तो एक मुसलमान के लिए जो है सना पैदा होते 5 टाइम जो है सना उसके लिए नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई है। तो वो जो है सना आज नहीं कल उसको तो जो है सना बचा लिया जाएगा कैसा भी। मगर ये जो गैर कौम है, ये जो गैर कौम को बचाने का ये ज़िम्मेदारी है वो हम जो है उम्मत मुस्लिमा पे है। तो इसकी ज़िम्मेदारी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो है सना आज के ज़माने के इमाम सैयद सादात अल हसनी वल हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन सैयद सादात अल हसनी वल हुसैनी नबी तरफ़ैन सैयद हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन दीनदार चंद बख्श चरखी लाहौर कि जो है आप जो है आपकी आल से भी है, आप दोनों तरफ से जो है सना आपका ददियाल जो है सना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से, आपका ननियाल हसन रज़ी अल्लाह तआला से नजीबुत तरफ़ैन है। आप आल से हैं, आप आल से रह के आप खड़ के जो है सो दीन इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में काम करें। और एक मकसद है हिंदुस्तान के अंदर में, क्या मकसद है? बशारत हो के नूर हक़ नुमायाँ होने वाला है, अरब की तरह हिंदुस्तान मुसलमान होने वाला है। आपने फरमा दिया कि बा मैंने पूरा अपना काम कर दिया, अब वक्त आने पर हिंदुस्तान जो है सना ये जन्नत नशान बन जाएगा। खाली जो है सना तबलीग करते रहो, गैर कौम में जाओ, गैर कौम में जाके तबलीग करते रहो। उनकी अपनी ज़बान में जब जाके जो है सना गुफ्तगू होती है तो वो लोग जो है सना खुश हो जाते हैं। फिर जब उनके हम वेद शास्त्र से, गीता से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं तो वो लोग जो है सना इतने जो है सना ताज़ीम करते हैं कि पूछो ही मत कि भाई हमको अब आज तक नहीं मालूम था। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि तबलीग करें, तबलीग में देखें कि तबलीग में क्या है और हम तक पहुँचे। आज हम नहीं पहुँचने की वजह से वो लोग जो है हमारे ऊपर में जो है सना जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन तक नहीं पहुँच रहे। जब हम उन तक पहुँचेंगे, जब हम उनके सामने इस्लाम को पेश करेंगे तो वो लोग जो है सना खुशी जो है सना इस्लाम में आ जाएंगे। क्योंकि इस्लाम किसी को जो है जुदा करने के लिए नहीं आया है। जितने भी 1,24,000 अम्बिया हैं उन सबको मानना है मुसलमान का काम है। और 1,24,000 अम्बियाओं में जो है सना हिंदुस्तान के अवतार भी मौजूद है, राम जी है, किशन जी है, जो है सना और भी दूसरे अवतार हैं। जितने भी अवतार ये आए हैं, ये सिर्फ भाषा का भेद है, हम नबी बोल रहे हैं और अवतार बोल रहे हैं। तो ये सारे अवतारें मौजूद है। तो हम उनकी ज़बान में जब उनसे हम बात करते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं। कह रहे कि भाई सच्चाई जो है वो है। राम जी किधर भी नहीं बोले कि मैं खुदा हूँ, किशन जी किधर भी नहीं बोले कि मैं खुदा हूँ, शिव जी किधर भी नहीं बोले कि मैं खुदा हूँ, बल्कि ये बताया कि मेरे बाद वो अवतार आने वाला है, वो कल की अवतार आने वाला है, वो कल की अवतार आएगा तो उसकी इबादत कैसी रहेगी वो भी आपने बताया है। जो है सना एक बार हनुमान जी जो है सना सवाल करते हैं कि अरे प्रभु, जब वो आप अपनी सीता को जो है छुड़ा के लाने के बाद में रावण के पास से जब आप जा रहे थे तो हनुमान पूछा कि प्रभु अब तुम जा रहे तो मैं किसकी इबादत करूं, कैसा करूं? तो राम जी ने जो है सना नमाज का तरीक़ा वहाँ पर मैं बताया कि ऐसी इबादत लेके आने वाले कल की अवतार आने वाले हैं, वो आएंगे तो इन्हीं की नमाज का जो तरीक़ा है ऐसा रहेगा। तो इनको देख के इनको मान के चलना होगा। इसी में सबकी जो है सना जीवन मुक्ति है बोलकर नमाज का तरीक़ा बताया। प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडम उच्यते तीनितम कुंडलागारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचम बिंदु संयुक्तम ओम मृत्यु ज्योति रूपकम। ये क्या है? नमाज का तरीक़ा इसमें बताया गया है कि इस तरीके से नमाज लेके आने वाला वो वजूद रहेगा, कल की अवतार रहेगा, जगत गुरु रहेगा, सरवर आलम जिसको बोला गया है। तो यही वो वजूद है जो नमाज लेके आएगा। तो सबको जो है सना इसको मान करके जो है सना चलना पड़ेगा। तो जो है सना बहरहाल ये जो है सना हर मुसलमान की जो है सना ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। क्योंकि जो है अब कोई नबी आने वाला नहीं है,
अब कोई रसूल आने वाले नहीं हैं, अब कोई दूसरी किताब आने वाली नहीं है, अब कोई दूसरी शरीयत आने वाली नहीं है, अब कोई दूसरी किताब आने वाली, कुछ आने वाला नहीं है। तो अब ये जो कुछ भी जिम्मेदारी है ये जो है उम्मत मुस्लिमा पे है कि जो है सना हक़ का काम करे। हमारे जो है सना अवतार, हमारे जो है सना नबी, हमारे सहाबा इतनी तकलीफ़ उठा के जो है सना दीन को फैलाए हैं, वो दीन को फैलाए करके हम जो है सना आज हम मुसलमान हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी जो है सना ये बने। ये जो काम है इस्लाह का काम तो होता रहेगा, इस्लाह के काम के लिए किधर भी जोर नहीं है, मगर के जो है सना दीन के काम के लिए अल्लाह ताला ने जो है सना आपको उठो उठो बोल के जो है सना बता रहा है कि बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिका इल्लम तफ़अल वमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नार। तो जो है सना आपको बताया है कि आप तबलीग करिए, आपकी हिफाजत मेरे हाथ में है। और एक भी कुरान की आयत क्या है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदन फमुलाक़ी। ऐ इंसान तू बहुत बड़ा मेहनती है, तू इतना बड़ा मेहनती है कि तेरे जैसा और कोई मेहनती है ही नहीं। आज इंसान जो है मेहनत कर करके जो है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बन के जो है सना डॉक्टर ही बनता है। डॉक्टर ही बन के जो है सना अब बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेता है, बड़े बड़ी प्रॉपर्टी बना लेता है, बड़े बड़े कारा तो बना लेता है, मगर अल्लाह ताला क्या फरमाए, या इंसान तुम बहुत बड़ा मेहनती है, मगर अगर यही मेहनत तू मेरे लिए करता तो मुझे पा लेता। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी मुसीबत नहीं झेलना पड़ता, इंजीनियर बनने के लिए कितनी मुसीबत नहीं झेलना पड़ता, और जो है सना बड़े बड़े जो है सना आपको साइंटिस्ट बनने के लिए कितनी मुसीबत नहीं झेलना पड़ता। तो ऐसे तकलीफ़ों से इंसान जो है सना एक राहत की ज़िंदगी पाता है डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद। जो कुछ भी उसका प्रोफेशन था वो बनने तक उसके लिए जो है सना मुसीबत ही मुसीबत है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये जो मुसीबत तुम उठाए है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, यही ज़ाती ज़िंदगी की अगर मुसीबत तुम दीन के लिए लगा देते, अगर तुम दीन में यही मेहनत करते तो तुम मेरे को पा लेते। इसका मतलब क्या, मेरे को पा लेते मतलब तुम्हारे से इंसान से मा खलक़्तु इंसा व जिन्सा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला जो है इंसान को अपनी तरक्की के लिए पैदा नहीं किया, मादी तरक्की के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह का इजहार बंदे से होना। लोग जो है सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस भी है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसको देखने से अल्लाह याद आए। हमें ना, तो जिसको देखने से अल्लाह याद है वो बेहतरीन शख्स है। तो हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को वो हुलिया बना ले जो अल्लाह चाहता है, तो तब जाके अल्लाह ताला जो है सना जिस तरीके से सहाबा इकराम की मदद जो है सना जंग बदर में किया है, कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तो वो जो जंग हुई थी, जंग बदर हुई थी, वो तुम नहीं लड़े बल्कि मैं ही लड़ा, तुमने क़त्ल नहीं किया बल्कि मैंने क़त्ल किया, वो तुम्हारा हाथ नहीं था बल्कि मेरा हाथ था। तो जब कभी इंसान दीन के काम के लिए अपनी जान को जो है सना इसमें डालता है, आजमाइश में डालता है, जब अल्लाह ताला जो है उसका हाथ जहाँ कहीं भी जाता है उसका पैर बन जाता है दीन के लिए, जहाँ कहीं भी जाके दीन की तबलीग करता है तो उसकी जो ज़बान रहती है ज़बान बन जाता है। तो ये अल्लाह ताला ये कुरान में बता रहा है कि जो है सना मैं जब कभी तुम दीन का काम करेंगे मैं जो है सना तुम्हारे साथ हूँ, और जो है सना तुम्हारे फरिश्ते भी जो है सना तुम्हारे साथ में हैं। अल्लाह ताला कुरान में जो है सना सूरह अहज़ाब में शायद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति अला नूर, कि तुम जो है वकाना बिल मोमिनीना रहीमा। तो वहाँ पर मेरा ताला फरमाता है कि तुम जब कभी दीन का काम करने जाते हो, लोगों की जुल्मत से नूर की तरफ तुम जब लाते हो, तो इसमें जो जितनी भी मुश्किलात आती है, इसके अंदर में जितनी भी तकलीफ़ होती है, तो तुम्हारे साथ में मैंने फ़रिश्तों को भी लगा दिया है। तो यही वजह है कि आज दीनदार अंजुमन जो काम कर रही है सारे हिंदुस्तान के अंदर में फैल कर, हम जो है सना मठों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, हर जगह में जाके जो है सना हम जो है सना धड़े से इस्लाम को पेश कर रहे हैं, बल्कि उनको जो है जो उनकी जो हकीकत है उनकी किताबों से उनको हम बता रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है सना इंसान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है ना हमारा काम क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जब आपके ज़िंदगी में किसी मुसीबत ही नहीं है तो दीन का आप क्या दीन का काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबा इकराम आके फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत हो गई, बहुत मोहब्बत हो गई मेरे को, बोल के जो है आप अल्फाज पे अल्फाज इजहार करते जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के फरमाते हैं, अच्छा मेरे से बहुत मोहब्बत हो गई। तो आप फरमाते हैं, जिस किसी को मुझसे मोहब्बत हो जाती है तो ये समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी में सैलाब से भी ज़्यादा तेज़ उसकी ज़िंदगी में जो है सना उतनी मुसीबतें आती हैं। मुसीबत सैलाब से भी तेज़, और उतनी मुसीबतें उतनी तेज़ आती है और उतनी ज़्यादा आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे।
تو خالی محبت کرنا، زبان سے محبت کرنا الگ چیز ہے، خالی زبان سے محبت کرنا نہیں ہے. ذکر اللہ الگ ہے. الا ذکر اللہ، اللہ وفیرو اللہ، یہ تینوں میں بھی جو ہے نا فلاح اللہ کی طرف جانا، اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے نا جانا، اور خود اللہ کی طرف جانا ہے. 3 ذکر ہے وہاں پر میں، اللہ، الا ذکر اللہ، الا بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف جانا، اللہ کے ذکر کی طرف جانا، اللہ کی طرف جانا. تو یہ 2 چیز میں جو ہے نا کوئی آپ کو رکاوٹ جو ہے نا نظر نہیں آئے گی. جیسا کہ جو ہے الا ذکر اللہ، اگر آپ ذکر کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، یا جو ہے مدرسے میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، الا ذکر اللہ ہے. آپ کو جو ہے نا بعد ہفتہ آپ کی جو ہے نا اچھی خاطرداری کر کے جو ہے نا آپ کو بھیجایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ذکر کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مگر جہاں پر آپ کو جو ہے نا الا بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، جب بھی آپ کو جو ہے نا رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہے، سب لوگ جو ہے نا آپ کی ایسی جو ہے نا خاطرداری کریں گے، الٹا ہونا تو پیسے بھی آپ کو دیں گے کہ آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، الا بیت اللہ. تو جب آپ الا بیت اللہ کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کا سواگت کیا جاتا ہے، آپ کو پھولوں سے ہار پہنایا جاتا ہے، آپ کی بہترین خاطرداری جو ہے نا کی جاتی ہے. مگر جہاں پر الا اللہ کا جو مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف جانا، خود اللہ کی طرف جانا، قرآن کی آیت ہے موتوا قبل ان تموتوا، کہ جو ہے موت آنے سے پہلے مر جاؤ. تو وہ کیا ہے؟ موت آنے سے پہلے مرنا مطلب اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ کے حوالے ہو جانا، اپنی زندگی میں جو کام کاروبار ہے سب چھوڑ کے دین کے لیے لگ جانا. تو یہ ہے موتوا قبل ان تموتوا. تو یہاں پر جانے کے لیے آپ کو جو ہے سنا کوئی جانے نہیں دے گا، کوئی جانے نہیں دے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کہ بھائی ادھر کدھر جا رہے ہیں، یہاں پر بیوی ہے، یہاں بچے ہیں، یہاں ماں ہے، یہاں باپ ہے، یہاں پر میں سب کچھ ہے، یہاں تب اتنا سب چھوڑ کے آپ جو ہے سو ادھر چلے جا رہے ہیں. تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ چیز شیطان جو ہے سنا بھٹکاتا ہے، لوگ بھی بھٹکاتے ہیں شیطان بن کے. یہی بات تھی وہاں پر میں جو ہے سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کے لیے جب نکلے تھے، تو آپ کے والد نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کے والد کے یہ الفاظ سے کہ آپ فرماتے اپنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اور جو ہے عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ نے اچھا نہیں کیا. فرمایا آپ نے کیا اچھا نہیں کیا؟ تمہارے باپ نے جو ہے نا گھر چھوڑ کے چلے گیا ہے محض دین کے خاطر بول کے جو ہے نا آپ بہت جو ہے نا تکلیف محسوس کر کے یہ الفاظ بتاتے ہیں. تو دین جب کوئی اللہ کی طرف جاتا ہے تو ایسے مصیبتیں جو ہے نا لوگوں کے اوپر میں آئے ہیں. تو جو ہے نا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی خاطر جو ہے نا ہم نے بہت کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہ کچھ کرو دین کے لیے، کوئی قربان کرو. اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے نا قربانی کی، بغیر قربانی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے سامنے تمام جو ہے نا جو صحابہ کرام کی زندگی ہے ہمارے سامنے نمونہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شہادت ہمارے سامنے ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ کے جو ہے نا نواز ہے، آپ کے چچرے بیٹے، آپ کے بھائی کے بچے، آپ کے بچے، سب کے سب جو ہے نا وہاں پر میں قربان ہو رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی؟ یہ تھا دین. وہاں پر میں مقابلے میں اپنے آپ کو ختم کر دینا غیر قوم کے سامنے. خیر وہاں پر میں غیر قوم کوئی بھی نہیں تھے، مگر جو ہے دین کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کر دینا، بک جانا، اللہ کے ہو جانا. تو وہاں پر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قربانی دے کر کے بتائے ہیں کہ اے لوگوں، جب کبھی دین پہ مصیبت آئے، جب کبھی جو ہے نا لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا دین میں جو ہے نا بڑا سمجھتے ہیں، یا تو پھر جو ہے نا دین کی مخالفت میں جو کوئی کھڑتا ہے، تو تم جو ہے نا کس طریقے سے شہادت دینا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ عمل کر کے بتائیں، ہمارے لیے نمونہ ہے. تو صحابہ اکرام جو ہے نا اس طریقے سے قربانی دیتا. ہمارے اندر میں کیا جذبہ ہونا چاہیے، ہم کو کس طریقے سے جو ہے ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. تو جو ہے انسان جو ہے دین کا کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مان رہا ہے. جب تک بکیں گے نہیں تم، اللہ کے جو ہے نا مقرب بندے نہیں بن سکتے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے. بولتا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر میں، مومنوں سے جان اور مال خرید لیے جنت کے بدلے، اسی کے بدلے جنت ہے. جب تک تم جو ہے اپنی پیاری سی پیاری چیز کو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم جو ہے اپنی پیاری سی پیاری چیز کو اللہ کے نزدیک قربان نہیں کر دیں گے، آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے.
आप हासिल जो है सो ना नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते बता रहा। तो कोई इंसान जो है अपनी प्यारी चीज़ क्या होती है? जब प्यारी से प्यारी चीज़ अल्लाह ताला कुरान में हमें बता रहा है, तो प्यारी से प्यारी चीज़ हमारी सिर्फ क्या हो सकती है? हमारी बीवी, हमारे बच्चे और हमारा माल, माँ बाप या हमारा माल, यही प्यारी चीज़ है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, प्यारी से प्यारी चीज़ को जब तक कुर्बान नहीं करते अल्लाह की नेकी तक जो है ना पहुँच ही नहीं सकते। वाला तो ये चीज़ों को कुर्बान करना है। ये चीज़ों को कुर्बान कैसा करना है? सब कुछ रखते हुए अल्लाह के हो जाना है। तो रिक्से करीम खाना है, रिक्से हलाल तो जानवर भी खा रहा है। रिक्से हलाल जो है, एक जानवर जो है रात दिन जो है ना घोड़ा दौड़ा के रात दिन दौड़ाने के बाद में उसको शाम में खाना देता, तो उसका जो है ना हलाल ज़्यादा हलाल है उसका। और ये जो गाय वगैरह बकरियाँ वगैरह ये सब कुछ जो है ना सब जो है मेहनत ले रहे हो से, मेहनत लेने के बाद में उसको चारा डालते हैं, तो उन लोगों का भी हलाल है। तो इंसान का भी हलाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर रिक्स करीम जो अल्लाह ताला फरमाए ये मोमिनों के लिए है, रिक्स करीम हमने तुम्हारे लिए रखा है। तो ये रिक्स करीम जो है ना इंसान को अल्लाह तक पहुंचाती है। तो अल्लाह के भरोसे पे हो जाना, अल्लाह जो दिया वो खाना। आज गौसे पाक आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना इतने जो है ना आशिक़ हो गए कि जो है ना रात दिन गए बोल तो जो है ना काटने तैयार है, मगर ख़ुद आप जो है ना मौस के छिलके खा के अपनी ज़िंदगी बिताए। खुद मौस के छिलके से आपने अपनी ज़िंदगी बिताए। सो है जब तक रहे अल्लाह वाले तकलीफ़ देते हैं, जहाँ से पूछ कर जाए तो उल्फत आस्ताने से रहे तक जो है ना कोई ख़दर नहीं किया गौसे पाक आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की। और तो तारीख़ में ये भी आता है कि जो है ना 150 साल तक जो है ना कुछ आपकी जो है ना मज़ार शरीफ जो है सो लोगों को मालूम नहीं हुआ कहाँ है करके। आपको बगदाद से जो है 7 से या 9 बार जो है शहर बदर कर दिया, फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जो है ना अल्लाह का इख्तियार जो है ना रंग इख्तियार कर लिया था आपने, और आप अल्लाह की तरफ निकले थे। इसी वजह से लोग जो है ना आपको जो है निकाल के शहर बदर कर दिए। मगर जब उनकी जो है ना बात उनको जब कब समझ में आई? आपके पर्दा फरमाने के बाद में समझ में आई। तो जब जाके लोग जो है ना आज जो है उनकी जो है सो नियाज़ा कर रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, फला कर रहे हैं, मगर रहे तक तो तकलीफ़ दी। तो ऐसा है। तो जब तक हम अपने आप को बेच नहीं देते, अब एक चीज़ है, मार्केट में कोई भी चीज़ है जैसा कि गाड़ियों का ही शोरूम है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई भी 4 व्हीलर है, कुछ भी होगा, जब तक वो मार्केट के अंदर है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ ऐसी पड़ी हुई रहती, वो धूल में पड़ी हुई रहती, क्या तो भी पड़ी हुई रहती, कचरे में तो भी रहती, कभी तो भी रहती। हज़ारों गाड़ियाँ हैं भाई पड़ी हुई है। मगर उन्हें बिकने के बाद जब आप उसको बेच के आप ला ले रहे हैं, तो ला लेने के बाद में क्या हो रहा है? वहाँ पर में आपको जो है आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, आप जो है सो ना उसकी जो है सो ना उसको साफ़ करके रख रहे हैं, आप उसका ख्याल रख रहे हैं पूरे से। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है सो ना अब जो है सो ना आपकी हो गई, यानी से वहाँ से वो चीज़ जब बिक गई तो फिर वो जो है सो ना आपकी हो गई वो चीज़, वो तो अब उसकी कदर हो गई आपके पास में। तो इसी तरह इंसान भी ऐसी है, अपने आप को बेचने पर इंसान जो है सो ना कदर पाता अल्लाह के नज़दीक। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर हमने अनमोल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं ख़रीदता हूँ लोगों को, किस लिए? जन्नत के बदले। तो हमारे बिकने के बाद में क्या है, एक मोमिन जो अपने आप को मोमिन कहता है, तो जब वो बिक जाता है अल्लाह के हाथ पे, तो जो है ना फिर उसके लिए दीन जो है ना उसके लिए जो है ना फ़र्ज़ हो जाता है, यानी कि तबलीग उसके लिए फ़र्ज़ हो जाती है। तो यही बात अब दीन कैसा काम करना क्या है, वो तो एक ज़माने का इमाम रहता है। ज़माने के इमाम से ही जो है ना इंसान को जो है ना आगे के हालात, आगे का रास्ता जो है ना मालूम होता है। तो यहाँ पर में हज़रत क़िबला आलम जो है ना ज़माने के इमाम बन के आए, और आपने आके जो है ना वो तरीक़ा बताया कि हिंदुस्तान कि किस तरीक़े से तबलीग हो। तो एक अल्लाह वाले के हाथ पे बिक जाना है, बैयत लेके बिक जाना है। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत लेकर के जो है ना आपने बैत रिज़वान ली थी, यहाँ पर मैं सारे सहाबा इकराम से हम जब जानते हैं कि सहाबा इकराम सारे जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इसलिए होते हैं कि आज उनसे अल्लाह राज़ी हुआ। तमाम कब राज़ी हुआ? तमाम मुसीबतों के बाद में। ऐसा नहीं कि सहाबा इकराम इस्लाम कबूल में ले लेने के बाद में राज़ी नहीं हुआ अल्लाह ताला राज़ी कब हुआ बोले तो वो लोगों को जो है सारे आज़माइशों से जो है निकलने के बाद में, आज़माइशें पूरी होने के बाद, यानी कि जो है उनको जो है भूख से, प्यास से, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने बीवी से, सबसे अल्लाह ताला जो है ज़रा डाल के जो है ना पीस दिया। तो भी जो है ना सहाबा इकराम जो है ना सारे के सारे लब्बैक बोले, कभी जो है अपने बीवी बच्चों की तरफ में पलटे नहीं, कि जो है ना दीन को आगे रख के बीवी बच्चों की तरफ में नहीं पलटे, भूख के लिए नहीं जो है ना ये हुए। तो जो है सो
एक बार एक जंग में जो है सना 7 सहाबा इकराम जो है सना प्यास से मर गए, प्यास से सिर्फ, क्योंकि जो है थक गए थे जंग लड़ लड़ के जो है सना। तो 7 सहाबा इकराम थे वहाँ पर, पानी पानी करते करते जो है सना एक औरत जो है सना, खातून जो है सना, जब काफिले में रहती थी वो पानी लेके आई थी। तो ऐसा आखिरी वक्त था, तो एक पहले सहाबी को लेके आके दी कि "ये लीजिए पानी पी लीजिए"। तो इन्होंने क्या करे, पानी 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 बोलते बोलते एक दूसरे सहाबी के पास में भेजे कि पहले उनको पिलाओ, शायद उनको मेट से ज़्यादा ज़रूरत है, उनके ज़्यादा आवाज़ें हैं। तो उन्होंने क्या करे, तीसरे के बाद तीसरा, चौथे के पास, चौथा, पाँचवें, पाँच छठे, ऐसे 7 सहाबा के इकराम के पास में जो है सना वो पानी दौड़ा, मगर किसी ने पानी नहीं पिया। यही बोला है कि शायद उनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है। तो ये क्या हुआ, 7 के 7 सहाबा इकराम जो है सना शहीद हो गए, महज इसके लिए, दीन के लिए, महज दीन के लिए। तो जो है सना सहाबा इकराम जो है सना ऐसे बड़े बड़े जो है सना थम ना सकते थे, अगर जंग में हट जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हो तेरे नाम से तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। तो सहाबा इकराम का ये जज्बा था, सहाबा इकराम का जो है सना ऐसा काम था कि जो है सना आप दीन फैलाने के लिए कभी जो है सना अपने आप को पीछे नहीं डाला आपने, है ना। काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतक भी लड़ता है सिपाही। तो ये बात है वहाँ पर में। तो दीन का जो जज्बा है वो इंसान को जो है सो ना अकेले तन्हा मैदान में खड़ा देता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सहाबा कराम के पास में यही ताकत थी कि उनको जिनके अंदर में ये नमाज और कुरान की तिलावत करने के बाद में जो हिम्मत और ताकत आती थी, वो मैदान में निकलते थे। क्योंकि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लेना, वही सहाबा कराम का मकसद था, तभी अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ है। तो यहाँ पर में सहाबा कराम ने जो है मुसीबतें उठाई है, उसी से दीन कामयाब हुआ, उसी से दीन फैला, जिनको हम आज तक जो है सना याद करते हैं। फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ या करवाता हूँ। तो जो है सना ये जो असल जो काम है दीन का, वो क्या है, दीन की तबलीग है। तो दीन की तबलीग करने के लिए उस दीनदार बंदे को पकड़ना पड़ता है जो तबलीग करता है मैदानों में। तो यहाँ पर में हर वक्त में जो है सना एक आध मौलाना के हाथ में जो है सना जो दीन का काम करता है, जो तबलीग का काम करता है, उसके हाथ में बिकना पड़ता है। तो उसके हाथ में जब बिकेंगे तो फिर वो आपको रास्ता बताता है कि क्या काम करना है, इंसान का मकसद क्या है, उसको क्या कैसा जो है सना अल्लाह जो है सना उससे राज़ी होता है। तो अल्लाह ताला जब रास्ता बनाता है तो जो है सना बंदे के लिए जो है सना कुर्बानी देने के लिए आसानी हो जाती है। वहाँ पर में सहाबा इकराम अपना माल जाल कुछ भी रखा ही नहीं। जब रसूलुल्लाह ने इन्फुकू का इंस फरमाया, किसी ने निस दौलत दी, कोई सारा घर उठा लाया। खजूरे शाम के थे, एक सहाबी के पास नहीं था कुछ और माल देने को, खजूरे ही उठा लाया, रखा उसको रसूलुल्लाह ने कुल माल के ऊपर, और फरमाया ये कुर्बानी है, सो कुर्बानी से बढ़कर नहीं। इससे मतलब कि कौन कितना माल देता है, खुदा ये देखता है कि कल्ब में इसार कितना है। बढ़ाती है मरातिब रूह के बढ़ाती है मरातिब रूह के इसार व कुर्बानी के, कुर्बानी से ही हासिल होता है खुर्ब रब्बानी। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे, आपको जो है सना ना ही जो है सना अल्लाह आपकी मदद करेगा, ना तो अल्लाह जो है सना आपसे राज़ी होगा, ना तो अल्लाह से मतलब है। इंसान जो है अपने आप को जो है सना जो कर रहा है वो कर लेके ये समझ रहा है कि मैं जो है सना बेहतर कर रहा हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, बन करके अगर आप वाकई सच्चे हैं तो आप दीन का काम कर रहे हैं, तो आप अपने काम को और साहबा के काम को जो है सना जोड़ कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और साहबा क्या काम कर रहे थे। तो आपको जो है सना खुल्लम खुल्ला पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है सना इस तहरीर को जो दीनदार अंजुमन खानकाह सरवर आलम आसिफ नगर हैदराबाद में ये जो एक तहरीक है, इसको ये जो है अल्लाह ताला जो है मिन जानिब अल्लाह ताला जो है इस जमात को खड़ा करा, ताकि हिंदुस्तान में को जो है जन्नत निशान जो है सुना बनाए, ताकि यहाँ के लोगों जो है सो प्यासे हैं, यहाँ के लोग, हम कुरान हमारे हाथ में है, कुरान की जो मारिफत है वो हमारे पास में अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये लोग प्यासे हैं, अल्लाह तश पुकार रहे हैं पानी, और वो पानी क्या है, वो कुरान का जो निचोड़ है, जो कौसर है, वही पानी है जो उनको देने के बाद में वो जब कुरान पढ़ेंगे, वो जब जो है ना इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, तो वो भी जो है ना आराम से जो है ना अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान होकर के पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला जो है ना इसका जो अजर है वो आपको जो है ना ता क़यामत तक आपके पास में आता रहेगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला से जो है हमसे जो है जो हकीकी काम है दीन का, वो काम हमसे ले ले, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी औलाद से ये काम ले ले। नहीं तो अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कम से कम आप खुद जो है ना अपनी जो है ना
अल्लाह से ख़ुद गुफ्तगू करे। अगर किसी के अंदर में तड़प है, अल्लाह की तड़प है, अल्लाह से मिलने की तड़प है, अल्लाह को पाने की तड़प है, तो आप तहज्जुद में उठ के नमाज़ पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करिए। कम से कम 40 दिन दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरे को सीधा रास्ता दिखा, मेरे को सीधे रास्ते पे चला और मेरे से अमल में काम ले ले। 40 दिन अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो जमात से भी मिला देगा, वो काम से भी आपको लगा देगा। मगर शर्त है कि आपके अंदर में वो तड़प हो। अगर आपके अंदर में तड़प नहीं है तो अल्लाह ताला आपको नहीं मिलाएगा। तो लिहाजा हम ये दुआ करते हैं कि जो है तमाम सुनने वालों को जो है सुना इस तहरीक को जो है सुना जाने कि इस तहरीक का काम क्या है। इस तहरीक का काम जो है किसी को अलग करना नहीं है, खानखाए सरवर आलम सबको मिलाने के लिए आया है। तमाम 72 फ़िरक़े से हमारी मोहब्बत है, क्योंकि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारा भाई है। तो ये लिहाजा हम दुआ करते हैं कि जो है हम जो है सना मिल के जो है दीन की खिदमत करें, अल्लाह की जो है सना मदद करें। आज जो है सना बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, मगर अल्लाह का काम करने के लिए कोई नहीं है। अल्लाह ताला पुकार रहा है ऐसे बंदों को जिसके अंदर जो है दीन की तड़प है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला पुकार रहा है कि आओ दीन का काम करेंगे जो है सना। तो खैर ख़ौम में जाके जो है सना दीन का काम करना, उनको जो है इस्लाम में जो है सना इस्लाम की दावत देना, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा आइन जो है सना ये साहबा वाला जो काम है वो यही काम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमसे भी दीन की खिदमत लें और जो है सना तमाम लोगों को जो है सना सुनने वालों को भी जो है सना सीधा रास्ता दिखाए। इतना कहते हैं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ व दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।